Hi, hello dear students. I welcome you all to my channel Elite Classes. Subscribe and like the channel. So now today we are discussing a short story. The title of the story is There Will Come Soft Rains, which is written by Ray Bradbury. तो मैं इस स्टोरी को हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा. इन ए वेरी शॉर्ट टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू. ठीक. Now let's discuss first the author. Little biography is here. So Ray Bradbury was born in August 22 in the year 1920. He is one of the most celebrated, prominent American writer of the present century, known for his highly imaginative short stories and the novels that include nostalgia for childhood, social criticism, and an awareness of the hazards of technology gone out of control. Bradbury has been called a visionary futurist whose predictions for the future often came true. He worked in a variety of genres like science fiction, fantasy, and horror stories. He wrote several science fiction that were published in New York Times. Also, the Martian Chronicle में इसकी बहुत सारी स्टोरी जो हैं वो पब्लिश हो गई है. तो इसके बारे में ये कहा जाता है इसने बहुत सारी प्रेडिक्शन की हैं साइंस और न्यूक्लियर वेपन्स के रिलेटेड, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत सारी तबाही हुई भी हैं और होने का खदशा भी है. इसलिए इस शॉर्ट स्टोरी में पढ़ेंगे हम यही कि आगे जो फ्यूचर है आने वाला है उस वक्त साइंस जो आज डेवलपमेंट न्यूक्लियर वेपन बनाने में कर रहा है इसके क्या हमें असरात आगे फ्यूचर में होंगे. So let's know about a story. So this story, There Will Come Soft Rains, is a science fiction written by Ray Bradbury, which was first published in May 6, 1950 issue of Collier's. Collier's is an American magazine. So this story was published in that. So later the story was included in Bradbury's The Martian Chronicle, and in this क्रॉनिकल इट वाज पब्लिश्ड इन 1950. अब इस स्टोरी का जो टाइटल है देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, ये ऑथर ने कहाँ से लाया है. सो द स्टोरी टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम द पोएम ऑफ सारा टीजडेल. अब लेट्स नो ए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी. तो इसका बैकग्राउंड क्या है इस स्टोरी का है, तो हम पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ह्यूमन रेस जो है ये तबाह हुई होती है न्यूक्लियर वार की वजह से. जैसे हम जानते हैं कि 2 वार हो चुके हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें कितनी तबाही हुई है. तो ये समझो 3rd वार हुआ होगा और उस वक्त कितनी तबाही मच गई होगी. तो दिस स्टोरी स्टार्ट्स इन ईयर 2026 इन विच द टेक्नोलॉजी हैज़ कम्प्लीटली टेकन ओवर ह्यूमन लाइफ, जिसमें सारी जो ह्यूमन लाइफ जो है ये मशीनों ने इस पर कंट्रोल किया होगा. So it predicts the post-apocalyptic world devastation due to the dropping of atomic bombs over Hiroshima and Nagasaki on 6 August. So everybody knows that in the World War II, when America has dropped the atom bomb to the great cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki, which were completely destroyed. So that was 6 August, and here this story starts in the 3rd August 2026, यानी कि आज से आगे आप सोचो 5 साल बाद अभी, क्योंकि आज 21 है. सो समझो 26 की स्टोरी है, उस वक्त हालत दुनिया की क्या होगी. सो पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वॉर्स एज नेशन इज डेवलपिंग न्यूक्लियर आर्सनल. सो देयर इज पॉसिबिलिटी बिकॉज एवरी कंट्री इज नाउ trying to make these nuclear weapons which are very much destructive. So this is a science fiction, so it is related with this न्यूक्लियर एटॉमिक मशीनरी जो आज बन रही हैं इसके क्या बुरे नताइज फ्यूचर में हो सकते हैं. सो नाउ लेट्स नो अबाउट द कैरेक्टर्स विच आर इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी में कौन मेन कैरेक्टर्स हैं. नाउ यू सी हियर फायर, हाउस, डॉग, रोबोट्स. एब्सेंट ह्यूमन्स आर एब्सेंट. सो देयर इज नो ह्यूमन बीइंग इन दिस स्टोरी. ओनली देयर इज ए हाउस, लोन हाउस, एंड फायर हैं, डॉग हैं, एंड रोबोट्स हैं. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ दिस स्टोरी. सो हियर इज अ शॉर्ट स्टोरी. द स्टोरी स्टार्ट्स इन August 3, 2026.
A nuclear catastrophe leaves the city of Allendale, California entirely desolate. So, Braid's Bear story is about a house which is the only thing to have survived a nuclear blast in the city of Allendale, California. एक ही मकान बचा होता है एक शहर में, जिस शहर का नाम होता है एलेंडेल। यानी एलेंडेल ये जो शहर है ये कैलिफोर्निया अमेरिका की एक सिटी में होता है। तो एक ही मकान बच जाता है क्योंकि बाकी सारी तबाही मच गई होती है, पूरे वर्ल्ड में कुछ भी बचा नहीं होता है, कोई इंसान नहीं जिंदा रहा है। सो वन मिरेक्युलसली प्रिजर्व्ड हाउस, ऑल द रेजिडेंट्स आर डेड। सो मिरेक्युलसली, करिश्मा ही जिसको हम बोलते हैं, एक मकान बच गया है और जितने भी इंसान जो हैं वो सारे डेड हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम्स विद इन द होम प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, क्लीन द हाउस, मेक बेड्स, वॉश डिशेस एंड ड्रेस द फॉर्मर रेजिडेंट्स। And in that house, you see here in the picture, everything is done by the machines. Even in the kitchen, ये जो रोबोट्स हैं सारा कुछ काम करते हैं। इवन कि ये ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते हैं, मकान को साफ़ करते हैं, बेड वगैरह शाम के वक्त ठीक कर लेते हैं, सोने के लिए तैयार रखा जाता है जो इंसान इस कमरे में होते हैं, इस मकान में होते हैं। और ये कपड़े भी धोते हैं, ये बर्तन भी धोते हैं। और यानी कि समझो जो भी घर में काम होते हैं ये सारे मशीन्स करते हैं, तो इंसान को कुछ करना ही नहीं होता है। जैसे आज भी अगर आप देखोगे कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं विच इज़ द एलीट क्लास इन सम डेवलप्ड कंट्रीज़, जिनके घर में बहुत सारा काम जो है ना वो मशीन्स ही कर लेती हैं, क्योंकि ये प्रेडिक्ट करता है 2026 में उस वक्त शायद ये घर घर की बात होगी कि सारा काम मशीन्स ही कर रहे होंगे। तो ये क्योंकि एक ही मकान होता है, इंसान कोई भी नहीं ज़िंदा है वहाँ पर, सिर्फ एक कुत्ता है जो बच जाता है और उसको ये मशीन्स एलो कर लेते हैं क्योंकि ये जानते हैं इसको और दूसरे किसी भी चीज़ को ये अंदर दाखिल नहीं होने देते हैं। और ये जो सारा कुछ काम घर में चल रहा है ये ऑटोमेटिक चल रहा है। अब इस घर में ये जो ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, द हाउस इज़ फुली ऑटोमेटेड, द हाउस कंटिन्यूज टू गो अबाउट इट इज़ डेली बिजनेस। एज वी नो दैट mechanical voice boxes hidden in wall make important announcements, while an automated stove turns out breakfast for family members who will never return. ये अपना काम कर रहे हैं, इन्होंने बेड सजा के रखे होते हैं, इन्होंने टेबल्स बिछाए हुए होते हैं, उस पर जो भी ब्रेकफास्ट का सामान था वो उन्होंने उस पर रख दिया, लेकिन इंसान को कोई भी वहाँ पर नहीं है क्योंकि ये जो है मशीन दे डोंट नो व्हाट हैपन टू दिस हाउस, दे आर अनअवेयर अबाउट ऑल दिस, हुआ क्या, लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं। वहाँ पर एक दीवार पर घड़ी लगी है, वो इनको आवाज़ देती हैं, जगाने के लिए स्पेशल एक आवाज़ होती है कि उठो टाइम हो गया है। तो ये सारे काम मशीनें ही कर लेते हैं। सो ऑटोमेटिक सिस्टम आपने देखा यहाँ पर सब कुछ है। इन स्पाइट ऑफ द डेथ ऑफ द रेजिडेंट्स द हाउस सिस्टम इज़ रन वेरी स्मूथली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बिना किसी डिस्टर्बेंस के सारा जो है ना घर का काम चल रहा है और ये सारा काम मशीनें कर लिए। सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, द हाउस recites to the absent hostess her favorite poem, There Will Come Soft Rains by the Sarah Teasdale. So this Sarah Teasdale की जो पोएम है ये मशीनें पढ़ रही हैं, ठीक, वहाँ की ये जो होस्टेस होती हैं उसके लिए। एंड आई विल जस्ट रीड आउट फ्यू वर्सेस ऑफ दैट पोएम, जिससे ये टाइटल लिया गया है सारा टीसडेल की पोएम का। देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड एंड swallows circle with their shimmering sound, and frogs in the pool singing at night, and wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their feathery fire, whistling their whims on a low fence wire. And not one will know of the war, not one will care at last when it is done. No one would mind neither bird nor tree if mankind perished utterly. And spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone. So this was some lines which were sung by these machines for the hostess. So अचानक इस मकान में क्या होता है, an accidental fire breaks out in the kitchen and spreads throughout the entire house. तो आग लग जाती है और ये आग मशीनें जो हैं इस बुझाने में नाकाम हो जाती हैं। The following dawn, अब दूसरे दिन सवेरे, a single voice from the lone surviving wall, and let's repeat the time and date.
तो सिर्फ एक मशीन होती है जो उनको डेट बताती हैं और वक्त बताती हैं। टुडे इज़ August 5, 2026। टुडे इज़ August 5, 2026। सो दिस इज़ रिपीटेडली, ये मशीन रह जाती हैं, ठीक। तो आग की वजह से बाकी सारा ख़त्म हो जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी हियर, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट दिस इज साइंस फिक्शन। सो ये प्रेडिक्ट फ्यूचर के बारे में करता है, जिसमें सारा निज़ाम जो है वो मशीनें ही संभालती होंगे। So here are some most important themes which you should prepare. One is the dangers of the nuclear war. Second is the power of technology. And third is war with nature. So I hope that you have understood this brief short story. Thank you very much.